Jai Gurudev students. In the earlier previous topic, I had explained how to create table and how to create relationship among the tables. In the chapter 5, that is working with queries. Here I am going to explain you how you will create a table, right? Just see, you will go to the Microsoft Office icon. Then in Microsoft Office, you have to select MS Access, that is Microsoft Access. What is Microsoft Access? This is your database. With the help of this, you are able to create database. From here, you have to choose blank database. Then file name, you have to give some name to your file. Suppose you have given student record, student underscore record, okay. Then create student record and then create. After creating, you are able to see a number of, in menu bar, a number of options are present. You have to make a click on create option. Where? In create option. Then in create option, select table design. Through table design, you are able to create table. First of all, here field name and data types are mentioned. In field name, you will give the field name, roll number, data type. Very important question. What is data type? I had explained earlier कि it will define the type of field. कि आप किस type की field enter करने जा रहे हो. It is of numeric type or text type. So roll numbers are of number type. So you will choose number from here. Okay. When you will select number, then again it will move to the next. After roll number, you will select first name, F name. First name, again, what will be for first name? It must be text. Then after first name, choose class. Class should be in numeric format, that is in number form. Then you will choose address. Address. In which form it will be, students? Just see. It should be in memo format. Why we will choose memo? Because इसमें आप long characters की entry कर सकते हो, right? Means a number of characters as well as numbers you are able to choose. After address, you will take city. City must be in text format. Okay. Then just make a click on close button. When you click on a close button, it will ask for the saving. That do you want to save the table? This dialog box, are you able to see, students? This dialog box will appear. This. Then you will select yes. After selecting yes, it will ask for the name. You just give the name to this table. You will select students. Okay. Students details. I have given student details name. Then okay. It is asking for the primary key. मैंने बताया था what is a primary key? It is a unique key which will identify a value uniquely, right? Then you will say no, क्योंकि आपको यहाँ primary key नहीं देनी है. Afterwards I will tell कि आपको primary key किस तरह से देनी है. Okay? First table हमने create कर ली, student details. अब रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें 2 tables की रिक्वायरमेंट होगी, तो वी विल चूज अनदर टेबल अगेन फ्रॉम हियर क्रिएट, देन टेबल डिजाइन. अगेन you will start field names. Second table I will choose of 2 marks only, 3 marks, 3 fields, that is roll number. First must be common. आपको पता है स्टूडेंट्स, दोनों टेबल में रोल नंबर कॉमन होना चाहिए. It must be number type. Then next is percentage. Percentage must be in number, and afterwards grades. Grade, okay. Grade क्या होता है? A, B, C, D and so on. तो ये आप टेक्स्ट में रहने दोगे. Then इसको भी आप क्लोज करो स्टूडेंट्स. जब आप इसको क्लोज करोगे तो फिर से ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस? यस. एंड गिव द नेम. एंड इसको क्या आप नेम दोगे?
marks table. Okay, marks. Now again it is asking for the primary key. Say no, कि अभी आपको प्राइमरी की अप्लाई नहीं करना. नाउ आई विल टेल कि आप किस तरह से प्राइमरी की अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स. नाउ इस पर्टिकुलर टेबल मार्क्स टेबल पे आप राइट क्लिक में करो, डिजाइन व्यू में जाओ, देन इन फ्रंट ऑफ रोल नंबर फील्ड यू विल जस्ट कीप योर कर्सर ओवर हियर. आपको दिख रहा है ये कर्सर मैंने यहाँ पे रखा स्टूडेंट्स. देन आपको राइट क्लिक करना है, प्राइमरी की ऑप्शन आ गया. आर यू एबल टू सी स्टूडेंट्स प्राइमरी की? देन सेलेक्ट प्राइमरी की. तो अब आपका रोल नंबर फील्ड क्या हो गया है, प्राइमरी की तरह ट्रीट करेगा. राइट, सेम प्रोसीजर you have to do in the student details also. Again you will select roll number, then choose primary key. Is it clear? I think आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीजें. Then say yes. Do you want to save? Yes. Okay, yes. Now अब हमें मार्क्स की एंट्री करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टूडेंट डिटेल्स, राइट, रोल नंबर 1, देन फर्स्ट नेम Aditi, class, this is class 8th, right? Address Naini, city Prayagraj, then roll number 2, first name Aditya, class 8th, Allapur, then city Prayagraj, then roll number 3 Shobit, class, suppose I have taken class 7, again Naini, then Prayagraj. Okay, next roll number 4 Ram, class 6, Major and Prayagraj. Okay, I have entered 4 records. आपने इसमें 4 रिकॉर्ड्स की एंट्री कर ली है. इसको सिंपली आप क्लोज कर दो, देन ओपन मार्क्स टेबल. रोल नंबर मस्ट बी कॉमन. ठीक है, आपको परसेंटेज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परसेंटेज फिल करना स्टार्ट कर दो. सपोज 44 का ग्रेड हमने दिया है सी ग्रेड. ओके, देन रोल नंबर 2 55, दिस मस्ट बी कम्स इन बी ग्रेड. रोल नंबर 3 66, it must be grade A. Roll number 4 80, it must be grade A. Okay students, ये आपको दिख रहा है. मैंने इसमें मार्क्स में इस फर्स्ट टेबल में स्टूडेंट डिटेल्स में एंट्री कर दी है. देन अगेन मार्क्स टेबल इज ऑल्सो एंटर्ड, स्टूडेंट डिटेल्स इज ऑल्सो एंटर्ड. ओके, नाउ सी अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रिएट में आपको जाके क्या करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है. टेबल आपको क्रिएट करना समझ में आ गया, हाउ यू विल क्रिएट टेबल. देन यू हैव टू क्रिएट रिलेशनशिप. अब आपको जाना कहाँ है, डेटाबेस टूल्स में. वेयर यू विल मूव डेटाबेस टूल्स, देन सेलेक्ट रिलेशनशिप्स फ्रॉम हियर. आफ्टर सेलेक्टिंग रिलेशनशिप, सी स्टूडेंट्स हमारी दोनों टेबल्स यहाँ पे दिख रही हैं. यू विल ऐड मार्क्स टेबल as well as student details. Okay, then add, and after that you will close it. Now see this procedure very carefully students. What you have to do, you have to select roll number of this table, drag it. Dragging का procedure आप समझ रहे हो, उसको प्रेस करके यहाँ रोल नंबर फील्ड में छोड़ देना है. अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कि रोल नंबर से रोल नंबर को आप क्या कराना चाहते हो, रिलेशनशिप मेंटेन कराना चाहते हो. देन यू विल क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट, एंड देन आप इसको डिस्टेंस पे भी ला दोगे तो भी आपको दिखेगा कि आपने इस टेबल से इस टेबल के बीच में क्या किया स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप मेंटेन करी है. ओके, नाउ इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिलेशनशिप स्टूडेंट्स. नाउ आफ्टर मेंटेनिंग रिलेशनशिप, क्रिएटिंग रिलेशनशिप, सिंपली यू हैव टू गो टू द फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन. जब आपने सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप सेव हो गया. नाउ अब आपको क्या करना है, सी
After saving, you have to click on marks field or student details. Suppose I have taken student details. So okay students, so you want to see the roll number 1 Aditi, class 8th, नैनी प्रयागराज. तो आपको देखना है इसी पर्टिकुलर टेबल में विदाउट मूविंग टू द स्टूडेंट डिटेल्स, marks table. You want to see the data of marks of Aditi, right? तो are you able to see students? plus marks are over here. यहाँ पे plus marks बन गए हैं. See? तो आपको सिंपली इस प्लस मार्क पे क्लिक कर देना है. आपने चेंज देखा स्टूडेंट, जैसे ही आपने इस प्लस मार्क्स पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सिर्फ रोल नंबर 1 आदिति, क्लास 8th, नैनी प्रयागराज. बट नाउ आफ्टर मेकिंग अ क्लिक ऑन दिस प्लस, you are also able to see the percentage of Aditi, that is 44, grade C. राइट, इट मीन्स कि आपने एक पर्टिकुलर टेबल में दोनों टेबल का डेटा देख लिया. सिंपली अगेन जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, आदित्य. यू वांट टू सी द परसेंटेज ऑफ आदित्य एंड ग्रेड ऑल्सो. सिंपली आपने प्लस पे क्लिक किया, 55%, ग्रेड बी. सेम प्रोसीजर विद शोभित, 66%, ग्रेड ए. विद राम, 80% एंड ग्रेड ए. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेशनशिप? हमने दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कराया. अब मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर टेबल ओपन करी है, दैट इज स्टूडेंट डिटेल्स, और आप उस पे प्लस साइन पे क्लिक करके नेक्स्ट टेबल का भी डेटा इसमें देख पा रहे हो. एंड अगेन आपको सिर्फ पर्टिकुलर इसी टेबल का डेटा देखना है. देन यू विल अगेन क्लिक ऑन माइनस, देन अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस. इज इट क्लियर? आई होप कि आपको टू टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना आ गया होगा, रिलेशनशिप क्रिएट करना. नाउ I'm going to explain how to create query. Why we will create query. I had explained in the introductory part of this chapter. Now make a click on query option. Then student, जैसे आपने क्लिक किया, are you able to see यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है, that is show table dialog box, and here field types, short and all, ये सारी चीजें मेंशन है. मैं अभी इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी. ओके, नाउ कम टू द शो टेबल. इसमें से आप कोई भी एक, एनी वन, राइट. सपोज हमने स्टूडेंट डिटेल्स टेबल लेनी है, देन यू विल मेक अ क्लिक ऑन ऐड सिंपली, देन क्लोज इट. अब क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड क्वेरीज क्रिएट करनी है. तो आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले जिन जिन फील्ड्स को एंटर करना है, यू विल हैव टू मेक अ डबल क्लिक, राइट. यू विल जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड. रोल नंबर मैंने डबल क्लिक किया, आपको दिख रहा है यहाँ पे रोल नंबर फील्ड शो हो रही है फील्ड कॉलम में. देन फर्स्ट नेम, देन क्लास, सपोज ओके एड्रेस एंड देन सिटी. मैंने सारी फील्ड्स ले ली क्वेरी क्रिएट करने के लिए. नाउ सिंपल, लेट मी डिफाइन ईच एंड एवरी फील्ड. व्हाट इज अ फील्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फील्ड? फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? The first row of the design grid displays the selected field names from the table. If you click in this cell, then you will see a drop down button which will enables you to select the field from the table. देखो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, सिटी कॉलम में है, यहाँ पे आपने क्लिक किया. अगर सिर्फ यहाँ पे रोल नंबर लेते तो भी यहाँ से आप चूज कर सकते थे कि आप यहाँ रोल नंबर लेना चाह रहे हो या फर्स्ट नेम, वॉट एवर, राइट. तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन एक मेन्यू आपको दिख रहा है और वहां से आप चीजों को चूज कर रहे हो, ऑप्शंस को आप यहाँ से चूज कर सकते हो, राइट. सेकेंड इज टेबल. टेबल क्या करता है? इट शोज द टेबल नेम फ्रॉम विच टेबल यू हैव टेकन दिस पर्टिकुलर फील्ड. तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक ही टेबल ली है स्टूडेंट्स. आर यू एबल टू सी? या टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स डिटेल्स. सो दिस इज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स. सो इन ईच एंड एवरी फील्ड इट इज शोइंग और डिस्प्लेइंग स्टूडेंट्स डिटेल्स, राइट, बिकॉज आई हैव टेकन सिंगल टेबल. Next is sort. What is sorting? It is not SH, right students? It is SORT. Sort. Sorting means arranging the data in ascending or descending order, right? हमने arrange किया था किसमें students? Ascending order में. Now I will select descending. I have selected descending. आपको दिख रहा है रोल नंबर अब किस फॉर्मेट में आ जाएगा स्टूडेंट? डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट. नेक्स्ट इज शो. व्हाट इज शो? इस फील्ड का क्या यूज है? This is the show property displays the check mark. The fields with check mark displays the information when the query is being run. जब आपकी query run होगी तब ये information display करेगा. To hide the field during the run time, deselect the check mark by clicking it. अगर आप नहीं चाहते हैं कि दिखे तो आप यहाँ से इसको deselect भी कर सकते हैं, right? Then criteria. What is criteria? It is a specific
स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड विल बी फिल्टर्ड इन द क्वेरी। आपको नहीं समझ में आओगे, लेट मी एक्सप्लेन स्टूडेंट्स कि आप क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। सपोज आपको क्वेरी आपने क्रिएट की, रोल नंबर 4 रोल नंबर्स वी हैव टेकन, मैंने लिया रोल नंबर 3, राइट। अब सिंपल मैंने रोल नंबर 3 का क्राइटेरिया किया है। अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया चूज करना है स्टूडेंट्स की रोल नंबर 3 का भी डेटा देखना है, और क्या है, ये मल्टीपल क्राइटेरिया शो करता है। आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हों उन सबका, या 7 के जितने भी स्टूडेंट्स हो उन सबका डिटेल्स क्या हो यहाँ पे डिस्प्ले हो, राइट। तो रोल नंबर 3 अगर क्लास 7 से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली दैट विल डिस्प्ले, नहीं भी बिलोंग करता है तो आपका रोल नंबर 3 डिस्प्ले होगा, और वो रोल नंबर्स डिस्प्ले होंगे जो क्लास 7 में या 6 में पढ़ रहे हैं। हमने 6 ले लिया, ओके। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यू जस्ट गो हियर। आपने क्या किया, इसको क्लोज किया क्वेरी को। अगेन इट इज आस्किंग कि डू यू वांट टू सेव, यस आई वांट टू सेव क्वेरी। क्वेरी नेम यू विल गिव मिक्स, ओके। मैंने दे दिया इसको मिक्स डेटा, आई हैव गिवन मिक्स डेटा नेम, देन select OK option. Now this is your query here, mixed data. Now I am going to make a click on this. मैंने मिक्स डेटा पे क्लिक किया स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या क्या रोल नंबर 3 दिख रहा है, क्योंकि ये हमारी रिकमेंडेशन थी। मैंने क्राइटेरिया में मेंशन किया था दैट रोल नंबर 3, बट मैंने एक और भी चीज मेंशन की थी कि हैविंग क्लास 6। सिंपल मल्टीपल क्राइटेरिया मैंने और ऑप्शन में क्या लिखा था, 6। तो यहाँ पे जो जितने स्टूडेंट 6 के होंगे, आई हैव एंटर्ड ओनली 1, तो यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स 6 क्लास में पढ़ने वाले होंगे तो सारे 100 स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। रोल नंबर 3, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया में रोल नंबर 3 दिया था और क्लास में क्या दिया था, 6। तो रोल नंबर 3 का स्टूडेंट 7 में पढ़ता है तो भी उसका डेटा डिस्प्ले हुआ है। क्लास 6 वाला स्टूडेंट रोल नंबर 4 बिलोंग करता है, बट फिर भी उसका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। इज इट क्लियर?